Good morning, everyone, and welcome all of you. আজকে আপনাদের প্রত্যেককে আজকে প্রোগ্রামে স্বাগত জানাই। যেমন প্রত্যেক দিন আমরা কোনো না কোনো লিডারশিপের সাথে আমরা মিটিং করি বা তাদের লিডারশিপ শুনি, সেরকম আজকেও একজন গ্রেট লিডার মোদিকের ওয়ান অফ দ্য গ্রেট পিলার ফ্রম বেনারস, আমাদের ব্র্যান্ড নিউ রয়্যাল ব্ল্যাক ডায়মন্ড ডাইরেক্টর আমাদের সঙ্গে আছেন। তার সাথে তার কাছে শুনবো আজকে মোদিকের সাথে ওনার সাথে অনেক দিনের যোগাযোগ, যদিও বেনারসে থাকেন উনি, বাট ওনার সাথে সম্পর্কটা মনে হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের একজন লিডার, বাট খুব ভালো সম্পর্ক, খুব ভালো একজন লিডার অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্কিং লেডি, যার সাথে আজকে কথা বলবো, যার কাছ থেকে আমরা লিডারশিপ সম্বন্ধে শুনবো, যার এক্সপিরিয়েন্স সম্বন্ধে শুনবো, তার লাইফ জার্নি আমরা শুনবো, আর বিজনেস কি করে বিল্ড করতে সেই ব্যাপারে আলোচনা করবো আজকে। তার আগে ছোট্ট একটা রুলস, যেটা জুম মিটিং এ প্রত্যেক দিন আমি বারে বারে বলে থাকি, সেই রুলসটাকে একটু ফলো করার চেষ্টা করবেন। লাইক মাইককে মিউট রাখার চেষ্টা করুন, কোনো স্ক্রিন শেয়ারিং এ হাত দেবেন না, কোনো শেয়ারিং এ যাওয়ার দরকারই নেই। সার্ভ ভিডিও অর বি প্রফেশনাল, যদি প্রফেশনাল ড্রেস আপে থাকেন তাহলেই একমাত্র ভিডিও অন করবেন, আদারওয়াইজ ভিডিও অন করবেন না। অ্যান্ড ডোন্ট ড্র অন স্ক্রিন, স্ক্রিনের উপরে কোনো কিছু লেখালেখি করবেন না, যাতে প্রোগ্রামটা আমরা সুন্দরভাবে মানে করতে পারি বা আপনারা কনসেন্ট্রেশনের সাথে প্রোগ্রামটাকে এনজয় করতে পারেন বা অনেক কিছু শিখতে পারেন, সেই দিকে খেয়াল রাখুন। পেন অ্যান্ড ডায়েরি নিয়ে বসুন, যেটাই আপনার মনে হবে যে এই পয়েন্টটা আপনার পড়া দরকার, আপনার লাইফ চেঞ্জের ক্ষেত্রে হেল্প করবে, সেই পয়েন্টগুলোকে নোট ডাউন করবেন। সো আর বেশি টাইম না নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আজকে জুম মিটিং এ প্রেজেন্ট করতে চলেছি আমাদের ব্র্যান্ড নিউ রয়্যাল ব্ল্যাক diamond director from Modicare India, from Benares. She is none other than Nandita Dotto. So একবার জোরে হাততালি মিসেস নন্দিতা দত্তের জন্য, and welcome you ma'am in our session. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you so much, Nandita Di, and welcome in our session, in our Zoom meeting. And obviously, just a minute. Thank you so much, Tanmay sir, for calling me. ভীষণ ভালো লাগছে, I'm really feeling proud কি আজকে অনেকদিন পর একসঙ্গে দেখা হচ্ছে ফ্রন্ট টু ফ্রন্ট, আর রিয়েলি ফিলিং অসম। মানে বাংলাটা বাঙালির মতনই, জীবনযাত্রাটা বাঙালিদের মতনই, বাট 25 বছর হয়ে গেছে বাংলা ছেড়েছি, তো ইউপির ছাপও চলে এসছে, তার সাথে সাথে মাছে ভাতে বাংলাটা মেনটেন করছি বেনারসে। তো হতে পারে মনে হবে যে অবাঙালি কথা বলছে, বাট আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু গিভ বেঙ্গলি হিলিং টু ইউ পিপল। প্রথমে তো বলিনি ওকে, কেউ লিখছেন ম্যাম প্লিজ ইন হিন্দি। তন্ময় স্যার কি করি? হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই ম্যাম। এন্ড ফার্স্ট অফ অল আমি ওয়েলকাম করতে চাই আপনাকে আজকের এই জুম মিটিং এ। এন্ড যেটা আজকে বলার উদ্দেশ্য আমার, সেটা হলো আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আজকে জুম মিটিং এ প্রত্যেক লিডারশিপকে আমরা ডাকি। সো আজকের জুম মিটিং করার উদ্দেশ্য এটাই যে দিদি অনেক দিন ধরে মোদিকেয়ার সাথে যুক্ত আছে তুমি, and হঠাৎ মোদিকেয়ার জার্নিটা কি করে স্টার্ট হলো, and how to start your journey in Modicare, housewife to networker, এই যে জার্নিটা এটা কি করে স্টার্ট হলো, কি করে মোদিকেয়ারে আসা শুরু হলো তোমার, and কোন জায়গা থেকে মনে হলো कि যেমন হিন্দিতে জানতে চাচ্ছি, হিন্দিতে আমরা প্রোগ্রামটা করবো, इट्स ओके। सो कैसे आपको पता चला कि यस मोदीकेयर ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग का लाइफ को चेंज कर सकता है, आपका जो भी ड्रीम है उस ड्रीम को आप फुलफिल कर सकते हो। सो उसी का ऊपर हम लोग जानना चाहते हैं।
So please, Nandita Di, over to you. And first of all, congratulations for your great achievement, Royal Black Diamond Director, one of the biggest prestigious title of ModiCare, जो आपने अचीव किए, तो जिसके लिए मैं दिलो जान से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। एंड साथ ही में आपका ये जो जर्नी है उसका बारे में कुछ जानना चाहते हैं। प्लीज ओवर टू यू। तो थैंक यू। यहाँ पे बंगाली हिंदी आ रहा है, तो मैं बंगाली में भी कुछ बोलूंगी बिकॉज आई एम बंगाली, हिंदी में भी कुछ बोलूंगी बिकॉज इट्स नेशनल लैंग्वेज। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तन्मय सर आपको कि आप मुझे यहाँ पे मौका दिए, मेरे मदरलैंड से मुझे फिर से मिलवा दिए। और तन्मय सर, मतलब आप लोग द वेस्ट बंगाल पीपल, यू आर रियली वेरी लकी टू हैव तन्मय सर विद यू, बिकॉज आज के डेट में भी मैं तो बनारस में हूँ, बट जब भी मुझे जरूरत पड़ती है, चाहे बनारस में हो चाहे वेस्ट बंगाल में हो, मतलब ही इज सो हार्ड वर्किंग और हमेशा तैयार रहते हैं हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। रात के 9, 10, 11 बजे कभी भी इनसे पूछिए, हेल्प करने के लिए तैयार है। हालांकि सर आज बोल रही हूँ, बट फीलिंग भाई वाली आती है। इसी अधिकार से मैं बोल भी देती हूँ, फिर प्रोफेशनली लगता है कि नहीं अभी बोलना ठीक नहीं होता, बट he is always there with us, और you are really lucky to have with you people. जर्नी शुरू, मतलब मेरी बात शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगी कि एक्चुअली आई एम फ्रॉम बंगाल। कॉलेज स्टडी सारी चीजें मेरी वेस्ट बंगाल से ही रहा है, कोलकाता आसनसोल मिला के रहा है। शादी हो गई थी अर्ली इन द एज, बोल सकते हैं कि बालिका बधू ছিলাম। 19 বছর বয়স ছিল, তখন বিয়ে হয়ে গেছিল। কিছু বুঝতাম না হাজবেন্ড কি করে, হাজবেন্ডের স্যালারি কত হওয়া উচিত, মা বাবা বললো ঝুপ করে বিয়ে করে নিলাম। আর তারপরে আমি গ্রাজুয়েশন করছিলাম, তো অতটা ম্যাচিউরিটিও ছিল না। 25 বছর আগে একটা মেয়ে অতটা ম্যাচিউর থাকতো না, হতো না। বিয়ে করতে বললো, ছেলে ভালো, করে নিলাম। ও মা, আচ্ছা গ্রাজুয়েশন ফার্স্ট ইয়ারে ছিল, তো মা বললো যে তুই তো 7-8 দিন পরে আবার চলে আসবি, এখানেই পড়াশোনা করবি, শ্বশুর বাড়িতে সব কথা হয়ে গেছে। তো আমার মনে হয় তো 8 দিন পর তো আবার চলে আসবো, মানে এরকম ভাবে বিয়েটা হয়ে গেছিল আর কি। তো আলটিমেটলি যেখানে আমি এক মেয়ে, বাবা পিডব্লিউডি তে চাকরি করতেন, মা এসবিআই তে ছিলেন, সবকিছু নিয়ে ভালো। আর কোনো কিছুর অভাব তো সেরকম কিছু ছিল না, বাট যেই ফ্যামিলিতে এসে পড়লাম, 5 ভাইয়ের সংসার। এবার ওকে, আমাকে একটু ধরে থাকতে হবে। Yes, it's okay. Okay. Where was I? हाँ, तो शादी ऐसे ही हो गया, और यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों के साथ कहीं पे बीच में ना सपने सारे खो गए थे ही नहीं। मतलब समझ नहीं आ रहा था पढ़ाई। ग्रेजुएशन के बाद एक गैप आ गया, सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या करूं क्या ना करूं। उसमें से छोटी सी एक स्कूल में जॉब मिल गया मुझे। हालांकि यूपी की টিপিক্যাল বেঙ্গলি, जो প্রবাসী বাঙালি বলে না, ওরকম টাইপের একটু মেন্টালিটি এখানে। তো আস্তে আস্তে যুদ্ধ করতে করতে, ফ্যামিলির সাথে যুদ্ধ করতে করতে স্কুলে অ্যাজ টিচার জয়েন করলাম। 2000 টাকা মাইনে ছিল। 2000 টাকার মাইনে, যেখানে যেতাম সেখানে যাতায়াতেই আমার প্রায় 700-800 টাকা খরচা হয়ে যেত। যেটুকুনি থাকতো সেইটুকুনি দিয়ে নিজের হাত খরচ চালাতাম। করতে 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 আই ডিড বিএড, এমএসডব্লিউ, লাস্ট এমবিএ করলাম। আর আলটিমেটলি আই হ্যাড 14 ইয়ার্স ক্যারিয়ার ইন স্কুল, সিবিএসই স্কুল, বেনারসের নাম করা কর্পোরেট স্কুল, খুব ভালো স্কুল। ধীরে ধীরে টিচার থেকে প্রমোশন হতে 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 অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে চলে গেছিলাম, আর একটা বেশ ভালো প্রোফাইল তৈরি হয়েছিল। বেনারসের মতো বিগ রেট সিটিতে প্রাইভেট জবে কেউ যদি আজ থেকে 3-3.5 বছর আগে 65,000 স্যালারি পায়, দ্যাট টু ইন প্রাইভেট, ইটস আ বিগ ডিল। তো আমার নিজের মনে হতো যে ঠিক আছে, আমি সাকসেস, এর থেকে তো বিশেষ কিছু হওয়া যাবে না, বা আমার কাছে রাস্তাও নেই। ওই স্কুল বাড়ি স্কুল, বাচ্চা ঘর, এই সমস্ত দেখতে দেখতে চলছিল সংসার। আমার এক বৌদি, যে আমার আপলাইন,
মিসেস মঞ্জু মুখার্জি আজকে রিয়েলি সে যদি এই প্রোগ্রামটা দেখছেন তাহলে মানে মানে শি ইজ লাইক গড। মানে প্রথমে তো বুঝতে পারিনি যে এরকম ভাবে আমার জন্য একটা ভালো অপরচুনিটি নিয়ে আসবেন। সামার ভ্যাকেশন ছিল, আমাকে বললো নন্দিতা আমাদের কিছু প্রোডাক্ট আছে আমি দেখাতে চাই, তো আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, डेमोस्ट्रेशन দেখালেন। जब दिखाएं डेमोस्ट्रेशन तो मुझे पता चला कि प्रोडक्ट तो अच्छा है और हाउसवाइफ भी है भाभी, तो अगर ले लेते हैं प्रोडक्ट इनसे और धीरे धीरे इनसे अगर सामान लेते रहेंगे 500 1000 का ले लेंगे तो एक हाउस वाइफ को सपोर्ट कर लेंगे और रिलेटिव हैं तो सपोर्ट कर लेंगे, तो रह भी जाएगा कि हाँ रिलेटिव ने सपोर्ट किया था। इसी सोच के साथ मैं इस बिजनेस में ज्वाइन करी। ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि प्रोडक्ट यूज करूंगी और वो भी यूज क्यों करूंगी ताकि मेरे भाभी को सपोर्ट मिल सके। बट मुझे नहीं पता था फ्रेंड्स कि वो मेरे लिए भगवान बन के आएंगे और मेरी लाइफ को 180 डिग्री चेंज करके जाएंगे। बोलते हैं ना कि आप भगवान आपके सामने आते नहीं है, जरिया बन के आते हैं, तो दैट इज माई अप्लाई। और उसके बाद मैं अपने मेंटर से मिली एंड ही इज ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर मिस्टर वीवी पांडे सर। और उन्होंने एक चीज मुझे कहा कि मैम यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मोदी केयर को अच्छे से लीजिए समझिए। और उन्होंने मैं बताऊं दिन रात एक कर दिए मुझे ये समझाने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ग्रेट इंडस्ट्री। और मेरे में इतने ही ईगो भरा हुआ था कि मैं सोचने के लिए तैयारी नहीं, समझने के लिए तैयारी नहीं थी। ऑल्दो मुझे उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था, वो जो बताते थे मेरी बहुत दिल के करीब होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं आता था। एक दिन सर 2 बातें बोले थे मुझे और वो बात मुझे आज तक मतलब कानों में घुसती है और मैं सारे लोगों को ये बताती हूँ कि सर बताते हैं कि सफल होना आपके लिए उतनी जरूरी नहीं है जितने आपके आसपास के लोगों के लिए। उस वक्त समझ में नहीं आया था कि मेरे लिए जरूरी उतना नहीं है तो फिर और किसी के लिए कैसे जरूरी हो सकता है। आज मैं समझ रही हूँ कि आज अगर मैं सक्सेस हूँ और मेरे वजह से मुझे देख के अगर बहुत सारे लोग मेरे टीम में आ रहे हैं या फिर टीम में नहीं भी है, कोई मोटिवेट भी हो रहे हैं और लग रहे हैं कि नंदिता मैम कर पाई ना, इतनी चैलेंजेस के बाद हम क्यों नहीं कर पाएंगे, सो दैट इज माय सक्सेस। और आज लिटरली वो बात प्रूव हो गई है कि सक्सेस पाना आपके लिए जितना जरूरी है उससे कई ज्यादा गुना आपका सक्सेस दूसरों के लिए मैटर करता है। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के हैंड होल्डिंग तो नहीं कर सकते, बट आप किसी को, आपको कोई देख के समझ के अगर आप एक दिन के लिए किसी की जिंदगी में स्पार्क बन जाते हो और वही स्पार्क उनकी जिंदगी की एक मोमेंटम बन जाता है, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग प्रेयर में भी बोलते हैं ना कि गॉड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट। सो आज मोदी केयर मुझे यही अपॉर्चुनिटी दिया। और हालांकि शुरुआत में जब मोदी केयर शुरू की चैलेंजेस बहुत आए क्योंकि मेरे हस्बैंड एकदम मना कर दिए थे और मुझे बोले थे कि नंदिता अगर ये ब्रश पेस्ट सोप शैम्पू बेचने वाला तुम बिजनेस करोगे तो मेरे घर छोड़ के चले जाओ। और একজন ওয়াইফের জন্য এর থেকে বেশি বড় কথা হতেই পারে না, তাই না? যে বেঙ্গলের মেয়ে মা বাবাও রিটায়ার করে চলে এসছে আমার ভরসায় যে মেয়ে দেখবে আর বেনারসে এখন থাকি, আর তারপরে হাজবেন্ড বলছে যে তুমি যদি ব্রাশ পেস্ট সোপ শ্যাম্পু বিক্রি করো তাহলে আমার ঘরে থাকবে না। तो আমি বলেছিলাম लेट मी थिंक, लेट मी ट्राई एटलीस्ट, अगर कुछ नहीं कर पाए तो हम फिर से वापस, मैं पैसा तो इन्वेस्ट कर नहीं रही हूँ। उन्होंने फिर शर्त रखे, बोले कि मेरे रिलेटिव्स को टच नहीं करना, बनारस के मेरे जितने क्लब्स मेंबर्स हैं उनको टच नहीं करना, बंगाली समाज जो है उनको टच नहीं करना, मेरे नेबर्स को टच नहीं करना, उसके बाद जो करना है कर लो। अरे बाबा। अब बनारस में मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की हाथ पकड़ के आ गई थी। कोलकाता में सारे रिलेटिव्स हैं, वो भी बहुत बड़ी फैमिली के नहीं है, तो रिलेटिव्स भी आप जानते हो कि बहुत बाद में आते हैं, जब आपको देख के समझ में उनको आ जाता है। स्कूल में मैं बोल नहीं सकती थी क्योंकि कॉर्पोरल सेक्टर है, बैक बिचिंग क्या होती है, कॉर्पोरल पॉलिटिक्स क्या होता है वो भी आप शायद जानते ही हो, बहुत सारे लोग जानते हैं। ऐसे ही चली शुरू हुई मेरे बिजनेस की जर्नी। और
एक दिन क्या हुआ उसी टाइम में, मतलब मेरा फर्स्ट पे आउट वाज 110। अच्छा। और ओके। फिर हाँ, और जब मैं दिखाई थी अपने हस्बैंड को तो बोल लिए थे हाँ इसी से अपने सपने का घर, सपने का माहौल सब कुछ बना लो और उसमें ही तुम ही रहना, मुझे रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मतलब यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, तुम उसमें रह ले। तो बंदा अब कर तो लिए थे कुछ, अब उसी डिसीजन को मुझे करेक्ट भी करना था। जिद्दी हूँ, कमिटेड हूँ, एक बार ठान लेती हूँ तो कर लेती हूँ, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। सुपर सुपर। फिर धीरे धीरे सर, सीनियर्स, सारे लोग मुझे डे टू डे बेसिस पे हैंड होल्डिंग करते थे। मतलब आज के डेट में मैं बताऊं, आज जो मैं हूँ, जितनी भी मैं हूँ आपके सामने, वो बिकॉज ऑफ माय अपलाइन एंड माय मेंटर वीवी पांडे सर। एंड जैसे तन्मय सर मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा हर चीज में। मतलब आपको मैं बोल रही हूँ ना, अपलाइन इस मतलब इस बिजनेस में अपलाइन और सिस्टम, जिनकी गाइडेंस आप हमेशा लेते हो, उनकी अगर छत्र छाया में रहते हो, आपकी सक्सेस मिलना प्रोसेस जो है, भले ही वो देर हो सकता है बट श्योर शॉट है, वो सुपर। आपको मिलना ही मिलना है, तय है। और यही प्रोसेस आप अपने टीम को भी सिखाइए। यहाँ पे बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बोलो ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सो दिस इज द पीरियड लॉकडाउन में जहाँ पे लग रहा है कि सच में मतलब जूम मीटिंग में डिजिटली आज हम लोग कहाँ पे चले गए, बिजनेस बिल्ड हो रहा है। पहले तो हम लोग बोलते थे कि सुनो, अगर कोई नया एरिया आप ले रहे हो तो उसमें ये समझ के जाना कि हर महीने 9-10 महीने कंटिन्यूअस आपको जाना है। और आज कहीं पे कन्याकुमारी में बिजनेस कर लो, कश्मीर में बिजनेस कर लो, कोलकाता में बिजनेस कर लो, कहीं पे भी आप बिजनेस कर सकते हो। डिजिटली आप इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, डिजिटली हम लोग लॉकडाउन, थैंक्स टू लॉकडाउन पीरियड, ये क्वारंटाइन, ये कोरोना, ये कोविड-19, ये सारे लोग हम लोग, मतलब दिस इज द पीरियड जहाँ पे हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में, खास करके मोदी केयर जैसे कंपनी में, हम लोगों के लिए ब्लेसिंग साबित हुआ है। सुपर। अगेन मैं अपनी जर्नी बोलूं, मैं जब जब मैं बिजनेस करते हुए मेरी 6 महीना हो गया था, हालांकि बहुत सारा बिजनेस समझ में नहीं आता था, लेकिन लोगों से बात करना, मेरे अपलाइन ही सारा कुछ कर देते थे, सिखाते थे, पैम्पर करते थे, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी। स्कूल के बाद मैं चली जाती थी ऑफिस, कुछ लोग आ जाते थे और उन्हीं लोगों के साथ बात करना, उन लोगों को समझाना, करते 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 विद इन 6 मंथ मैं जब फर्स्ट मेरी मतलब मेरी फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिए हम, दैट इज फॉर बैंकॉक। और उसी टाइम में मेरा बेटा ग्रेजुएशन में मुंबई जाना था उसको, और हम 14 डेज की एक इमरजेंसी बेसिस पे हमें जाना पड़ा मुंबई उसको एडमिशन देने के लिए। और क्योंकि वो संडे था और हम अपने फॉर्मल जो प्रोसेस होता है वो हम कर नहीं पाए थे स्कूल में, तो 14 days I was in 16 days I was in Mumbai for the admission process of my son। और वो जब करके लौटी तो बनारस में आके मेरी छोटी सी टीम बनी थी, और मेरे अपलाइन सपोर्ट से मेरी फर्स्ट ट्रिप रेडी था। और वहीं पे जहाँ पे मैं 14 साल काम की थी, वहां पे 14 दिन की मेरी सैलरी कट कर ली ओके। स्कूल वाले एज पनिशमेंट। और उस दिन बंगाली के दिल में आग जो लगा ना, मैं बताऊं, मैं बोली कि आज से अपने आप में प्रॉमिस की, अपने आप में कमिटमेंट की, आज से नमक रोटी खाऊंगी लेकिन जॉब नहीं करूंगी, और खाऊंगी तो मोदी केयर से खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। एंड देयर आई रिजाइन माय जॉब। और उस टाइम पे मेरे मोदी केयर से जो इनकम उस महीने में आई थी, दैट इज 456। अच्छा। सर को पूछे नहीं थे, मंजू मैम को बताए नहीं थे, नोटिस जब मेरी जब एप्लीकेशन रेजिग्नेशन जो था वो एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद मैं अपने अपलाइन को बताई थी। इट नॉट वाज अ गुड डिसीजन, बेवकूफी वाली डिसीजन था, बट आई प्रूव माई सेल्फ दैट डिसीजन वाज करेक्ट। बट ये किसी को नहीं करना है कि जॉब छोड़ देना है। जॉब में या फिर जिस प्रोफेशन में आप हो,
अगर 10,000 मिल रहा है, मोदी केयर से आप 30,000 बना लो, उसके बाद आपको स्विच ओवर करने के लिए सोचेगा। बट माई डिसीजन वॉज बैड, बट मैं उसको करेक्ट कर ली। आज 3 साढ़े 3 साल में मैं 3 फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुकी हूँ, अच्छी खासी पे आउट मिल रहा है, कार ले ली हूँ, हाउस फंड भी आ रहा है, बहुत अच्छे टीम है। और सबसे बड़ी बात, आई एम सो ब्लेस्ड विद माय टीम। मतलब अगर मैं बोल दूं ना कि ये करना है, ये अभी सुबह है, शाम नहीं, और वो अगर शाम में भी बोलते हैं यस मैम आप सही बोल रहे हो, ये सुबह है। एंड आई एम सो मच ब्लेस्ड विद माय टीम। मतलब दे आर लाइक वॉरियर्स, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, और विदाउट एनी क्वेश्चन। और आपको उनकी साइकोलॉजी समझना होगा। देखिए यहाँ पे हमेशा बोला जाता है, समीर सर बोलते हैं कि रोकड़ा कमाओ, रोकड़ा लो। और रोकड़ा आप कब ले सकते हो? जब आप अपलाइन से कनेक्ट होके इंटर इंडिपेंडेंट होके काम करो। आपकी आइडियाज होंगे, आप खुद से काम करोगे, आप डेमो दिखाओगे, आप प्लान दिखाओगे, आप अपनी टीम की काउंसलिंग करोगे, बट विथ द कनेक्शन ऑफ योर अपलाइन। बिकॉज जर अगर कट गए ना, वहां पे आप बहुत आगे बढ़ नहीं सकते। तो इंडिपेंडेंट बनिए, बट इंटर इंडिपेंडेंट रहिए। और हमेशा जैसे आपके साथ तन्मय सर हैं, तन्मय सर और आपके जो अपलाइन हैं, कंटिन्यूअस टीम के लोगों के साथ कम से कम 2 अपलाइन की टच में जरूर रहिए। क्योंकि एक होता है ना, हम लोग मम्मी जैसे एक छोटे बच्चे को डांटते हैं, तो क्या होता है, मम्मी डांट दी बच्चों को, अब बच्चे रोते रोते मम्मी रो, मम्मी मार दी, मम्मी तोड़ दी। अब क्या जाएंगे वो दादी के पास या फिर नानी के पास। दादी नानी कौन है? आपके जो अपलाइन है। मतलब मेरे डाउनलाइन के लिए मैं माँ, और मेरे जो अपलाइन है, मेरे डाउनलाइन के लिए वो दादी नानी। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपके अपलाइन के साथ भी उनको इंटरकनेक्ट कर देना है। क्योंकि जब वो, अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, या फिर उनको लग रहा है कि मैम जो मेरे सपोर्ट मतलब अपलाइन है, उनसे बहुत अच्छे से मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ताकि वो आपके अपलाइन के पास जाके, या फिर जैसे तन्मय सर से जाके वो एडवाइस दे सकती। बी इंडिपेंडेंट, बट डोंट बी इंडिपेंडेंट, इंटर इंडिपेंडेंट रहिए। कमिटमेंट रखिए, एक कमिटमेंट कर लीजिए, उसके बाद भगवान के छोड़ के किसी को भी मत सुनिए। क्योंकि सुनने सुनाने के लिए तो हम लोग आए ही हैं, किसी की माँ बहन के। आज मैं बोलती हूँ कि बहुत सारे लेडीज ऐसे हैं मेरे टीम में, या फिर आपके टीम में भी होंगे, बहुत सारे लेडीज हैं जो अपने से सांस लेने के लिए भी उनको किसी ना किसी की डिसीजन सुनना पड़ता है। एक ही जिंदगी मिली है, और उस जिंदगी में हम अगर अपने भलाई के साथ साथ हमारे 3 जनरेशंस की भलाई कर जा रहे हैं, लिगेसी बना रहे हैं, व्हाट इज द हार्म ऑन इट? हम कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं, हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं किसी को। ऑर्डर लेने के लिए ऐसे नहीं कर रहे हैं, हाथ ऐसे हैं। आप जब दान देते हो आपका हाथ ऐसे होता है, और आप जब भीख लेते हो ऐसे होता है। डोंट लाइक अ बेगर विद अ बेगर एटीट्यूड कि मैम ले लीजिए ना, प्लान ज्वाइन कर लीजिए ना। नहीं, उनको आप समझाइए, बिजनेस समझाइए कि उनको क्यों जरूरत है। और उसके बाद ना, जब उनको समझ में आ जाएगा, तो वो ब्रश पेस्ट पेस्ट मोमेंट व्हाइट पर्ल सोप उनके लिए ब्रश पे सोप शैम्पू नहीं रह जाएगा, उनके लिए एक स्टेयर बन जाएगा। उनके लाइफ चेंज करने के लिए, उनकी पैसिव इनकम अर्न करने के लिए, उनकी कार के लिए, उनकी फॉरेन ट्रिप के लिए, उनके आने वाले जनरेशंस को इकोनॉमिकली स्टेब्लिश करने के लिए। और ग्रेविटी के साथ बिजनेस कीजिए। बहुत सारे लोग देखते हैं कि मैम वो ज्वाइन नहीं की और डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। हमें अपना रास्ता खुद तय करना है। बहुत सारे लोग आएंगे, हम लोग एक कहा मतलब बोलते हैं टीम में, पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, फिर भी हम बोल रहे हैं, मोदी केयर में एक ट्रेन छूटती है, रोज छूटती है, और वो छूटती है गरीबपुर से लेके अमीरपुर तक। ट्रू ट्रू ट्रू। और वो गरीबपुर में हम लोग सब चढ़ जाते हैं,
और वो सिर्फ और सिर्फ अमीरपुर में जाके हम लोगों को सबको अमीर बनाने के लिए चलते हैं, बट बीच में आता है होशियार, उसमें कुछ लोग उतर जाते हैं। होशियार मत बनिए, इमोशनल रहिए, बी अवेयर विद योर ड्रीम्स। और अमीर गरीबपुर से चढ़े हैं तो अमीरपुर जब तक स्टेशन ना आ जाए, होशियारपुर आए तो आंख बंद कर लीजिए। जब लगे कि बिजनेस हो नहीं रहा, बस आंख बंद कीजिए। हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, हैव फेथ ऑन द कंपनी, हैव फेथ द सिस्टम, हैव फेथ ऑन योर गॉड, और बस बैठे रहिए। दिस इज द बिजनेस जहां पे 2020 की स्पीड में आपको चलना है, बट अल्टीमेटली मेंटली आपको रहना है कि दिस इज द टेस्ट सीरीज। आपको टिके रहना है, यहाँ पे टिकेंगे तो चलेंगे, नहीं टिकेंगे तो होशियारपुर में बहुत सारे होशियार लोग उतर जाते हैं। और वही लोग बोलते हैं मोदी केयर नहीं चलता, नेटवर्क मार्केटिंग होती नहीं है। नंदिता मैम एक लंबी सी मैम है ना, वो हमेशा बोलती है, बहुत बड़ी बड़ी बात बोलती है, वो किसी का कुछ नहीं होता, सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है। यही सब सुनने को मिलेगा। अब हमें करना क्या है, बहुत सिस्टमेटिक काम करना है, प्लानिंग स्ट्रैटेजिक वे में हम लोगों को प्लानिंग बनाना है, और डे टू डे बेसिस पे हमें एक्शन करना है। छोटी छोटी एक्शन कीजिए, बट उसकी आउटकम गोल्स होनी चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं ये काम, हम रोज अगर कर रहे हैं तो उसकी आउटकम गोल्स हमें पता होना चाहिए कि हम इनको फोन मिला रहे हैं तो इनसे मेरी गोल क्या है, इनको कहाँ पे पहुंचाना है, और इनके साथ साथ मुझे इनको कहाँ ले जाना है, ये भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। और तभी जाके किसी को कॉल भी करे तो वो प्रोडक्टिव निकलेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हालांकि आज के डेट में मेरे बहुत सारे स्टेट्स में भी मेरी बिजनेस चल रही है, बिजनेस हो रही है, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगी दोस्त, ये मोदी केयर सिर्फ मोदी केयर पाना, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, बट मोदी केयर इज द कंपनी जहाँ पे सच में शायद हम लोग पिछले जन्म में मोतीदान किए थे, तब जैसे मोदी केयर, समीर मोदी सर जैसे इंसान मिले। वेरी आज नाइस। लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ पे सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिनको पे आउट नहीं मिल रहा है, बहुत सारे कंपनीज हैं जहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, और समीर मोदी सर हम लोगों के लिए रात दिन प्रयासरत है कि इनको, मेरे लोगों को कभी तकलीफ ना हो। और उन्होंने पता नहीं हमारे, हम लोग तो चिल्लाते रहते हैं प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, हम लोग तो सोचते हैं कि हमारी बिलिंग नहीं हो रही है, 100 पीवी में जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट वेयर हाउस तक सामान पहुंचाने के लिए कितने लोग पता नहीं लीगल अफेयर से गुजर रहे हैं। तन्मय सर, सुब्रतो सर, ये लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कितने सारे जद्दोजहद करके कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं है। पहले तो 4000 में फ्री मिलता था, अब 2000 में फ्री मिल रहा है। मतलब तब मोदी के प्रॉफिट में थे कि आज मोदी के प्रॉफिट में है, और तब भी जाके हमारे पास बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे एक भी पे आउट में इधर से उधर होने नहीं दिए कि तब। इनफैक्ट इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज्यादा बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स आए हैं वो निकल के आए हैं। और ये क्यों? बिकॉज समीर सर एक ऐसे इंसान है जो यहाँ से मोदी केयर नहीं करते हैं, यहाँ से मोदी केयर करते हैं। और रियली आई एम थैंकफुल टू गॉड कि समीर मोदी सर जैसे इंसान हमारे जिंदगी में आए, हमें इतना समझ दिए कि मोदी केयर हम लोग समझ लिए। बस हमें आपका, इस बार समीर मोदी सर अपना बेस्ट पार्ट कर दिए हैं, आप पूरी जिंदगी हम लोगों का उन पे उधार रहा। सुपर, और व्हाट वेरी वी नाइस। कैन डू, तो व्हाट वी थैंक यू, कैन डू। यस नंदिया दी, थैंक यू सो मच। एंड यस, हम लोगों का टाइम ऑलरेडी थोड़ा सा कम है, मैं एक दो बात और भी बोलना चाहता हूँ। यस, यू हैव हाँ जी, हाँ जी। ट्रूली सेड कि आज का डेट में चैलेंजेस तो है, प्रोडक्ट का चैलेंजेस तो है। मैं अपना नॉर्थ बंगाल का बात करूंगा। ऐसे ओवरऑल मोदी केयर को बहुत स्पीड पे ग्रो कर रहा है, हम लोग हर एक को जानते हैं। इंडिया में क्या वर्ल्ड पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, एक एक दिन में 10,000 से ज्वाइनिंग आ रहा है। मैं स्टॉक लेके चैलेंजेस आ रहा था, मैं हायर मैनेजमेंट का साथ बात किया। मैं नंदिया दी आपका साथ में शेयर करना चाहता हूँ, मैं नॉर्थ बंगाल का आज का डेट का जो सेल है, अगले महीना जो सेल था उससे 221% ग्रोथ पे है। मतलब डबल नहीं, मतलब डबल से भी ज्यादा। अब एक बात बताओ,
लास्ट मंथ जो मेरा चीज 100 निकला था, आज का डेट में वो चीज 300 निकल रहा है। मतलब कोई भी कैलकुलेशन काम में नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी हालत पे, मतलब ये चैलेंजेस तो है, लेकिन ये भी फक्र का बात है कि ऐसे कंपनी में हम लोग काम करते हैं जहाँ पे स्टॉक रहता ही नहीं है। एवरी टाइम हम लोग को नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मिलता है। सोचे ऐसा कोई कंपनी में काम करने का मजा थोड़ी आता जहाँ पे रैक में प्रोडक्ट भरा हुआ है, कभी अच्छा नहीं लगता। ऐसा कंपनी में काम करने का मजा है जहाँ पे जब भी प्रोडक्ट मिले और नया मैन्युफैक्चरिंग डेट का साथ मिले। मैं आज मेरा नॉर्थ बंगाल की बात करता हूँ, एक प्रोडक्ट जो 100 पीस निकलता था वो प्रोडक्ट आज 300 पीस निकल रहा है। लेकिन हम लोग उसमें प्लानिंग जो होता है 3 महीना 4 महीना पहले होता है। तो ये जो चैलेंजेस है इसको हम लोग ओवरकम करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। एज ऑफ ना थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहा है, लेकिन एक दिन में अगर 10,000 ज्वाइनिंग हो रहा है तो इसमें तो थोड़ा बहुत हम लोग, लेकिन मोदी केयर का जो मोटो है, जो आजादी देने का जो प्लानिंग है, जो जुनून है, जो लीडरशिप का जुनून है, जो हम लोग का समीर सर का जो जुनून है, उसको थोड़ा मानते हुए हम लोग का ये सब चैलेंज भी बहुत छोटा चैलेंज पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग का विजन बहुत बड़ा है। हम लोग का विजन है फिनेंशियल आजादी टू ऑल इंडिया, और यही चीज मोदी केयर को सबसे अनोखा बनाता है। आज का डेट में चैलेंजेस एवरीवेयर है, लेकिन फिर भी आज का डेट में मोदी केयर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। अगर आप लोगों का जैसे जैसे राहुल सर ने उस दिन बता रहे थे, जिस हिसाब से मोदी केयर इस मंथ जा रहा है, मे बी हम लोग हो सकते हैं 200 करोड़ का इस मंथ का हम लोग टर्नओवर हो। ये बहुत फक्र का बात है कि ऐसे कंपनी में जिसमें 200 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, ये इतना सारा चैलेंजेस रहते हुए भी हम लोग इतना अच्छे तरीके से काम करे, ये फक्र का बात है। सो मैं इसी बात के लिए आप लोग हर एक को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हो, इतना जुनून का साथ काम कर रहे हो, जज्बे का साथ काम कर रहे हो। और मेन समीर सर का साथ हम लोग हर एक का विजन एक ही है कि फिनेंशियल फ्रीडम टू ऑल इंडिया। और उम्मीद रखता हूँ कि इस कामयाबी के पीछे हम लोग तो सिपाही है, लेकिन मेन फ्रंट पे जो लोग रहते हैं वो लोग आप लोग हैं। तो आप लोग को हर एक को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इतना जुनून का साथ, इतना जोश का साथ आप लोग काम करते हो। हम लोग सिर्फ तो सपोर्ट सिस्टम है, यस ऑब्वियसली सपोर्ट देते थे, सपोर्ट दे रहे हैं और फ्यूचर में सपोर्ट देंगे, लेकिन इतना सारा नेगेटिव से फेस आप लोग करते हो, वहां से ओवरकम भी आप लोग करते हो, आदमी को पॉजिटिव भी आप लोग करते हो। सो दिस इज द मेन थिंग। सो नोंदिया दी, अभी 2-3 मिनट हम लोग का टाइम है। मैं जानना चाहता हूँ, अब जब रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का प्लानिंग किस टाइम में किए थे, और आफ्टर अचीवमेंट इतना बड़ा टाइटल, आपको फीलिंग कैसा हुआ, और बिजनेस के लिए क्या चीज में हम लोग को फोकस करना चाहिए, कौन सा पॉइंट पे न्यू ज्वाइनिंग को, न्यू मेंबर को फोकस करना चाहिए, ये जस्ट हम 2 से 2.5 मिनट के अंदर आपका पास से जानना चाहते हैं प्लीज। तन्मय सर, मेरी जो आरबीडी हुआ ना, अगेन इट्स बिकॉज ऑफ माय ऑफलाइन। वेरी गुड। मैं लॉकडाउन सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन में थी, और मतलब ये जो हेल्थ वाइज जो चैलेंजेस था उसके लिए बहुत पैनिक हो गई थी, और मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही थी कि पांडे सर का फोन आया कि मैम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप मतलब चेंज करने के लिए सोच रहे हो। हम बोले नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या होता है, आई विल ट्राई, बट अभी तो दिख नहीं रहा। अगेन फिर वही मंजू मैम आई, नंदिता करो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, और 2 दिन में मेरी आरबीडी हुई थी। सुपर जस्ट सुपर। मतलब शाम को हम लोग डिसाइड किए कि ठीक है आरबीडी करेंगे, और नेक्स्ट डे मतलब मंजू मैम पहले ही लग गई थी मेरे टीम के साथ फोन पे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, उधर से बिजनेस लाना है, और नेक्स्ट डे 29 में मैं आरबीडी थी। और मुझे समझ ही में नहीं आया, मतलब आज मैं तन्मय सर, मुझे लगता है कि ये हुआ कैसे। और जस्ट बिकॉज ऑफ डबल पीवी धमाका, जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम के थ्रू सारे लोग चल रहे थे। और आज की डेट में मैं एक सेकंड में बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जो लॉकडाउन के पहले पैसिव इनकम के बारे में समझाते थे, लोगों को बोलते थे कि एक्स्ट्रा इनकम करना चाहिए, आपकी अर्निंग रिसोर्सेज की डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, वो उनको समझ में नहीं आता था। आज उनको समझ में आ रहा है, और दिस इज द राइट टाइम
जिन पे आपको चोट करना है, बोलना है कि देखो पैसिव इनकम करना चाहिए, देखो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज अगर आप करते हो, न्यू ज्वाइनीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। आज न्यू ज्वाइनीज करना बहुत आसान है, बस पहले तो आपको जाना पड़ता था, आज आप सिर्फ जूम मीटिंग में बैठा दो, ओपन प्लान में बैठा दो, परिवर्तन कर दो, उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा। काउंसलिंग कर दीजिए, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, घर में बैठ के आप किचन में रह के, ड्राइंग रूम में बैठ के ये सारी चीजें कर सकते हैं। आज के डेट में बिजनेस बिल्ड करना और भी आसान, सिर्फ अपनी ये चेंज करना होगा, Very nice, सोच को बस, very nice, very nice. और कुछ नहीं। Thank you so much, Nandita. Thank you so much for coming in this session. So much, Tanmay. I'm really proud of you, really grateful to you যে তুমি আমার সঙ্গে সব সময় থাকো।